اور یسوع مسیح کیسے تھا؟ وہ بھی راز تھے، وہ انسان سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے دونوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ یہ گناہوں کی معافی کا کیا لیں؟ بپتسمہ لیں۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ یہ توبہ کر کے بپتسمہ لیں، بلکہ یہ اس راست بازی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، جس کا ذکر یسوع نبی نے کہا۔ کس نے کیا؟ یسوع نبی نے کیا، اور اس پیشن گوئی کو یہ دونوں مل کر پورا کریں، اسی لیے کہتے ہیں ہمیں۔ اسے نہیں کہا ہم، کسے؟ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا، کیونکہ یسوع مسیح راست باز تھا، اور یوسف بھی کیا تھا؟ راست باز تھا۔ مقدسہ مریم بھی کیا تھا؟ راست باز تھا۔ روح القدس کی قدرت سے یہ راست باز یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے۔ وہ ایک نمونہ دے رہے تھے، ایک طریقہ کلیسیا کو دے رہے تھے کہ یہودی فقیر فریسی بھی بپتسمہ لیتے ہیں، صدوقی بھی بپتسمہ لیتے ہیں، اور یہ نمونہ وہ دے رہے تھے کہ وہ تو توبہ کا بپتسمہ، گناہوں کی معافی کا بپتسمہ، لیکن یہ جو بپتسمہ ہے یہ راست بازی اختیار کرنے کے لیے ہے۔ آمین۔ اسی طرح ہمیں ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ جی، اس پر اس نے ہونے دیا، اس پر اس نے ہونے دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بپتسمہ ہوتا ہے تو کیسے راستے کھلتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ راستے کھلتے ہیں۔ جی دیکھیں، آگے بڑھیں۔ اور یسوع مسیح بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے سے اوپر آ گئے۔ فی الفور پانی سے کیا ہوا؟ اوپر آئے، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی، آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ آمین۔ پہلی تو بات ہے راست بازی کو جیسے ہی پورا کیا، ہمیں ساری راست بازی کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، 2 یا 3 سیشن میں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو ساری راست بازی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح اوپر آئے تو ان پر روح القدس کبوتر کی مانند، یاد رکھیں کبوتر روح القدس نہیں ہے، روح القدس کبوتر کی مانند خداوند یسوع مسیح پر پڑھے، اس کو لفظ صحیح لفظ پڑھے۔ اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اپنے اوپر آتے دیکھا۔ پہلی تو بات ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، کیا لاتے ہیں؟ ایمان دار جو ہے، ایمان ہی سے راست باز پھیلایا جاتا ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں یسوع مسیح پر تو ایمان روبے کے خط ہم دیکھتے ہیں اس کے 5 بات میں کہ ایمان ہی سے ہم کیا رہ جاتے ہیں؟ راست باز۔ اور جیسے ہی اوپر سے آتے ہیں، آتے بپتسمہ لے کر، آسمان کیا ہوتا ہے میری چیزوں؟ بپتسمے کا سب سے بڑا سائن ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح کی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ آسمان کھل جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب یوحنا اصطباغی بپتسمہ دیتا تھا آسمان نہیں کھلا، ایک نا، جب یوحنا اصطباغی بپتسمہ دیتے تھے گناہوں کی معافی ہوتی اور ان کو کہتے تھے کہ توبہ کی معافی کیا لاؤ؟ پھل لاؤ، لیکن یہاں پر آسمان کھل گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2،
रूल कुद्दस आउटर, किसकी मानित? कबूतर की मानित। कबूतर रूल कुद्दस नहीं है। और आज मैं काफी साल पहले मालपुर और लाहौर की चिड़ियाघर में गया और बिलखसूस कबूतर जहां पाए जाते हैं उस एरिया का मैंने विजिट किया। क्यों? क्योंकि वहां मैं देखना और जानना चाहता था, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि सफेद कबूतरों को लिखा होता है मुकद्दस कबूतर। गैर कौम भी लिखते हैं, ये गैर कौम के लोग हैं ना, ये भी क्या लिखते हैं सफेद कबूतर को? मुकद्दस कबूतर। और मैंने देखा बहुत खूबसूरत सफेद कबूतर थे और बाहर एक जो है वो क्या कहते हैं स्लाइड्स पर लिखा हुआ था मुकद्दस कबूतर। क्यों? ये लोग भी जानते हैं ये वही कबूतर है जो खुदावंद यीशु मसीह पर रूल कुद्दस की मानित, इसलिए इसको मुकद्दस कबूतर कहते हैं। लेकिन हमारे कबूतरों पर ईमान नहीं, ये साइन। ठीक हो गया? बपतिस्मा पाते हुए आसमान हमारे लिए खुलता है, नंबर 1। नंबर 2 रूल कुद्दस नाज़िल होता है, 2। और नंबर 3 यहाँ पर तस्लीस तीनों मौजूद है। कौन मौजूद है? यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर, खुदा की आवाज, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और नंबर 3 रूल कुद्दस, खुदा, इसका बेटा यीशु और रूल कुद्दस। इस बपतिस्मा के बाद तीनों मौजूद है। और मेरे अजीजों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो रास्तबाजी को हम पूरा करते हैं और इस बपतिस्मा को गुनाहों की माफी का बपतिस्मा कहते हैं। इस बपतिस्मा को तौबा करके निजात पाने का बपतिस्मा कहते हैं। आमीन, हालेलुया। अब हम आगे चलते हैं। यीशु मसीह की तालीमात क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि इसी तरह होने दो। आमीन। देखिए मरकस की इंजील और उसका 16वां बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। पहले तो बात उनको यह हुक्म दिया कि सारी खल्क क्या है? जमीन की इंतहा तक जितनी दुनिया है उसमें क्या करो? इंजील की मुनादी करो। जी आगे। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। जो ईमान लाए, ये तालीमात मसीह है। अगर आप इंग्लिश बाइबल रेड मार्क वाली है जिसमें यीशु मसीह के अल्फाज है, उसको रेड लाइन से लिखा हुआ है, तो उसको आप देखें, ये रेड लाइन से लिखा हुआ है जो ईमान लाए, नंबर 1, और बपतिस्मा ले, नंबर 2 बपतिस्मा ले और वो निजात पाएगा। वो निजात पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त फरिश्ते ने कहा कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और हम ये जानते हैं कि मसीह अपने नबी मुबारक से फरमाते हैं, जो मुझ पर क्या लाए? ईमान लाए, नंबर 1। फिर क्या लाए? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, कौन सा? इस्तबाक का, गुत्ते का बपतिस्मा लिया, तो वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। अब छोटा बच्चा जो है वो अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर सकता। रासवादों की औलाद, कृत्य के खत में लिखा है, रासवादों की औलाद रासबाज ही होती है। ईमानदारों की जो औलाद है, जब पैदा होती है, क्या होती है? ईमानदारी होती है। जब तक हम देखते हैं यशायाह 7वें बाब में
جہاں پر اس کا نام کیا رکھنا؟ اس کا نام ایمینوئل ہوگا، ساتھ ہوگا. اور جب تک نیک اور بد کی پہچان نہ کر سکے، رد و بدل کو نہ جان سکے، تو کیا کھائے گا؟ دودھ اور شہد. رد و بدل میری چیزوں، جب تک بچہ اچھی بری چیزوں کا امتیاز نہیں کر سکتا، وہ کیوں کر گناہ کر سکتا ہے؟ کیوں کر وہ کیا کر سکتا ہے؟ گناہ کر سکتا ہے. یہودیوں میں جو بپتسمہ تھا وہ 30 سال کی عمر میں دیا جاتا تھا، جب وہ بالغ ہوتے تھے، جب وہ نیک اور بد کو سمجھنے کے لائق اور قابل ہوتے تھے، جب وہ شریعت کو اچھی طرح سے وہ اسٹڈی کرنا اور سمجھنا جان جاتے تھے. اور میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح نے بھی کتنے سال کی عمر میں بپتسمہ لیا؟ 30 سال. ہاللیلویا. جو ایمان لائے بپتسمہ لے، وہ کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. پھر آگے بلیسنگ. اور جو ایمان نہ لائے، جو نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. ملزم نہیں. ملزم تو وہ ہوتا ہے جس پر الزام لگتا ہے اور عدالت میں اس پر جب ثابت الزام ہو جاتا تب وہ مجرم. لیکن یہاں پر ڈائریکٹ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. اس لیے مجرم بننے سے بہتر ہے کہ ہم استواخی بپتسمہ لیں، غوطے کا بپتسمہ لیں. آمین. اب ہم آ جائیں متی رسول کی انجیل، جو وہ مشہور آیت ہے، یہ بھی مشہور آیت ہے، وہ بھی مشہور آیت ہے. اس کا 28 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت پڑھیے گا. خداوند یسوع مسیح صلب فرمانے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں. جی. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی. یسوع مسیح نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھ کو دیا گیا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. بس تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ. اور ان کو باپ. اور یہ طریقہ جو کہتا ہے نہیں یسوع کے نام کا بپتسمہ، یعنی کہ یسوع کے نام کا بپتسمے کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کر ہم کل اگلے اتوار میں سیکھیں گے کہ یسوع کے نام کا بپتسمہ یہ ہے کہ جس طرح یسوع مسیح نے کیا حکم دیا. یسوع کا بپتسمہ. ایک بپتسمہ کس کا ہے؟ یوحنا کا بپتسمہ. اور دوسرا بپتسمہ کس کا ہے؟ یسوع کا. یوحنا کا بپتسمہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ اور توبہ کا بپتسمہ. اور یسوع کا بپتسمہ کیا ہے؟ خدا باپ، بیٹا اور روح. یہ ہے یسوع کا. اور یہ اونلی جیزس والے کیا کہتے ہیں؟ صرف یسوع کا. یہی لکھا ہوا. وہ لکیر کا فقیر ہے اور وہ عالم میں جو ریسرچ کرتا ہے، بہت بڑا عالم، بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اچھی اچھی کتابیں لکھی. لیکن یہاں پر آ کر وہ پھر صدوقی بن جاتا ہے. یہاں پر وہ فریسی بن جاتا ہے. لیکن فریسی اور صدوقی بھی اس کے پاس آئے تاکہ اپنے گناہوں کی معافی کا کہہ لے. وہ یہودیوں کا بپتسمہ ہے. ہاللیلویا. میری چیزوں حکم کیا ہے؟ جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو. اور ان کو پڑھے، ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام سے بپتسمہ دو. باپ، بیٹے اور روح قدس کے نام سے بپتسمہ دے، نہ کہ یسوع کے نام سے. کتنا کلیئر ہے. خدا باپ، بیٹے اور روح قدس کے نام. پھر پڑھے اور ان کو باپ. جو فیس بک پر یہ چلے گی تک میں ان کو بتاؤں کہ کیا لکھا صاف طور پر متی کی انجیل 28 باب اس کے 19ویں آیت میں کس طرح سے یسوع کا بپتسمہ دینا ہے. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ.
और उनको बाप बाप और बेटे बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, ना कि यीशु के नाम से। आमीन। अब बपतिस्मा का मतलब हमने जाना कि रंग मिटाना, डुबोना, इसको बपटाइजो कहते हैं। अब ये जो छिड़का जाता है, जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया या चर्च ऑफ पाकिस्तान के या यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन के लोग अपनी तरतीब जो उन्होंने दी हुई है, बाइबल की तरतीब नहीं, अपनी तरतीब, हम अपनी तरतीब को नहीं मानते। हम किस तरतीब को मानते हैं? जो अंजीर मुकद्दस में तरतीब लिखी हुई है, उस तरतीब को मानते हैं। तुम 100 दफा जो तरतीबें मर्जी बना लो, मुझसे भी खत में और इससे भी खत में भी लिखा हुआ है, तुम्हारी ये तरतीबें तुम ही को क्या हो, मुबारक हो। ये तरतीब ऐसे नहीं है। मेरे सी तो एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक्सफोर्ड डिक्शनरी जो इंग्लिश की है, उसमें जाकर बपतिस्म के लफ्ज को निकाले तो वो इसकी तशरीह करती है। वो क्या करती है? इसकी तशरीह करती है और वो लिखती है, बताती है कि बपतिस्म जो है वो, उसका मतलब प्रोटेस्टेंट कलीसिया के अंदर क्रिस्टनिंग है। क्या है? मोहल्ले कहते हैं बड़ी टेरस को क्रिस्टिंग बच्ची। क्रिस्टिंग का मतलब वहां पर लिखा हुआ है कि उस बच्चे का क्या रखना? नाम रखना, ना कि बपटाइज करना। हाँ, पानी या तेल लगाकर उसको ब्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसको बपतिस्म कह सकते हैं। बपतिस्म का मतलब क्या है? गोता देना। और पानी छिड़कने का मतलब क्या है? बोले रेंटेजो। अगर यूनानी में अब रेंटेजो का मतलब देखें तो उसका मतलब है छिड़कना, और उसकी तशरीह यूं की गई है कि जैसे कि औरत पानी बाल्टी में लेकर अपने सिर में क्या करती है? छिड़काव करती है, उसको रेंटेजो कहते हैं, बपटाइजो नहीं कहते। ये तो वैसे ही हो गया जैसे हम कहें कि मैं रोटी पीता हूं और पानी को कहूं पानी खाता हूं, जैसे हमारे फ्लोज भाई मानी को कहते हैं। वो पीने को भी खाना और खाने को भी पीना ही कहते हैं। तो इतना बड़ा तजाद जो समझ में ना आए तो फिर इस्लाम है ऐसे स्कॉलर्स को। और मैंने कई बार कहा वो आलम और वो जो पीएचडी जो इस पर की हुई है डॉक्ट्रिन्स के ऊपर जो पीएचडी की हुई है, अगर इस इरशाद आज़म को और इस आखिरी अल्फाज को नहीं समझ सकते तो वो पूरी बाइबल को भी समझ नहीं सकते। हाँ, नौकरी शौकरी करनी है तो एक लहदा अमल है, बिशप बन के नौकरी करनी है तो एक और लहदा अमल है, पादी बन करके भी नौकरी करनी है तो एक अलहदा अमल है। जो मर्जी करते रहे, उनकी तरतीबों के मुताबिक, उनकी डिनोमिनेशन के मुताबिक चलते रहे, लेकिन याद रखें फरीसी और सदूकी भी बपतिस्मा लेने के लिए आए। हालेलुया। अब हम आगे चलें। बपतिस्मा है क्या? ये तो हमने इब्तिदाई बातें और मसीह की तालीमात को देखा, और पालूस रसूल पर यीशु मसीह बपतिस्मे को जो खोलते हैं, लेकिन उससे पहले निकोदेमुस को बपतिस्मे की क्या तालीम दी? देखिए यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी पहली 2 आयत पढ़े। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदी, फरीसी है ये शख्स, और निकोदेमुस और शरह का अलग भी है। निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। यहूदियों का सरदार भी है। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, छुप कर, लुक कर, कोई देख न ले,
इस तरह से मेरे पास पादरी साहब भी आए चर्च पाकिस्तान के, चुप कर कि पास्टर अकरम हमें बपतिस्मा में दे, बाकरू का बपतिस्मा भी। इस बैतुल चर्च में कितने प्रीस्ट हैं जो आज यूके में भी बैठे हुए हैं और अमेरिका में भी बैठे हुए हैं और स्वीडन में भी बैठे हुए हैं, जिन्हें बपतिस्मा और रूह कुदस का बपतिस्मा भी दिया और आज उन डिनोमिनेशन को छोड़कर जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक बपतिस्मा भी देते हैं। आमीन। आज ये छुप कर आता है जी। यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं। एक और बात भी कहता है, फरीसी किसी को रब्बी नहीं कहते, लेकिन निकोदेमुस क्या कहता है यीशु मसीह को? ऐ रब्बी। हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। मान रहे हैं कि तू खुदा की तरफ से क्या होकर आया है? उस्ताद होकर आया है। क्योंकि जो मौत तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। जैसे मौत हमने देखे हैं, आज तक इसराइल वैसे मौत नहीं देखे, और ये वही दिखा सकता है जिसके साथ कौन हो? खुदा। जब तक खुदा उसके साथ ना हो। जब तक खुदा उसके साथ इकरार। जी। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, न्यू बॉर्न नई पैदाइश। वो खुदा की दूसरी डिनोमिनेशन के लोग नई पैदाइश किसको कहते हैं? तौबा कर ली, बपतिस्मा बच्चे वाला, निजात पाली, उसको भी न्यू बॉर्न कहते हैं। कई अपने आप को मुंह चोकर हाथ लगा लगा कर अपने कार्ड प्रिंट कराए होते हैं, इवेंजलिस्ट, बपतिस्मा याफ्ता लोग, न्यू बॉर्न अगेन। नहीं, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो, आसमान की बादशाह को देख नहीं सकता। जाना तो दूर की बात, उसको अपनी दूर से आंखों से भी तुझे मैं दिखाऊंगा नहीं। जी। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हुआ? दुनियावी जिस्मानी बात, दुनियावी जिस्मानी और दुनियावी ख्याल। इंसान बूढ़ा होकर माँ के पेट में कैसी बातें कर रहे यार। और तू तो आलिम है, शरअ का आलिम है, और शरअ के आलिमों के भी क्या है? आंखें और दिमाग बंद। इसी तरह डॉक्टर भी हैं जो प्रिंसिपल भी हैं, उनके भी आंखें और दिमाग बंद है। वो इस लाइन को नहीं समझते कि खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दे। बपतिस्मा का मतलब अपनी तशरीह बनाकर करते हैं चीटी का। नो, बपतिस्मा का मतलब रंगना, बपतिस्मा का मतलब गोता देना है। ये आलू होकर नहीं सकता। अगर हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह इसको टाउट करता है या इसकी खिंचाई करता है। जी। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल माँ के पेट में दोबारा जाएगी? होकर पैदा हो सकता है? कैसी फलसफा बात कर रहा है? यीशु ने जवाब दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता मैं तो फिर जवाब मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये किसके इरशाद है? किसके इरशाद है? यीशु मसीह के हैं। किसी पादरी के नहीं, किसी बिशप के नहीं, किसी पोप के नहीं है। ये कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं कह रहा। जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। रंटैजो से नहीं दाखिल हो सकता, वो पैदल से दाखिल हो सकता है। जी। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ जो है, रूह से पैदा हुआ है रूह है। मेरे और आपकी पैदाइश रूह की होनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि वो तुम्हें आग और रूह से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। आमीन। तो 10वीं आयत पढ़ो, क्या कहती है 10वीं आयत? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच बनी इसराइल का उस्ताद होकर
तो क्या तू इन बातों को नहीं जानता। तेरा दिमाग बंद है, दिल भी बंद है, मैं तुझसे सच सच आंखें भी बंद है, तू नहीं जानता। बनी इस्राएल का उस्ताद होकर इतनी सी बात नहीं जानता। बड़ी दोबारा इसको। यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो हम जानते हैं हम जानते हैं, वो कहते हैं, वो क्या जो हम जानते हैं वो कहते हैं, कहते हैं, और जिसे जो हमने किताबों से तरतीबों से पढ़ा हुआ है मैं तो वो नहीं बताता। मैं तो वो बताता हूँ जो कलाम मुक़द्दस से मैंने जाना है। मैं वो बताता हूँ जो इन किताबों में लिखा हुआ है। इबादत की तरतीब वो मैं नहीं बताता, वो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। और जो मेरी बाइबल और इंजील की तरतीब है उसको मैं मानता हूँ। जिसको हम जानते हैं वो बताते हैं, जिसको तुम जानते हो तुम जानो। जी फिर दोबारा पढ़े जानने वाली बात, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कि जो हम जानते हैं जो हम जानते हैं वो कहते हैं, वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, उसकी गवाही देते हैं। और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। तुम गवाहियों को कबूल नहीं करते, गवाहियां भी नहीं देते। तुम सिर्फ पादरी बनकर नौकरी पक्की करते हो। जब रिटायरमेंट हो जाते हो तो फिर अकरम को वो पूरा पादरी बुला के कहता है, अकरम मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं तंदुरुस्त हो गया, अकरम मैं तेरे साथ मिलकर खिदमत करूंगा और बपतिस्मा भी दूंगा। चर्च ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सीनियर पादरी मेथोडिस्ट का बात ये क्या है? मेरे जीतो बपतिस्मा कितना जरूरी है कि जो नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकते। देख नहीं सकता, और जो